Hello everyone, Namaste. This is Arunima, and this is my second video on depression/anxiety. And this topic is very close to my heart because I have personally gone through it. It took me almost 5 years to fight with depression and come out of it. And I think I can give you certain tips basis my experience and how to deal with depression effectively. You need to understand that these steps are not, cannot be replaced with medical advice. So, in case you are suffering or from depression, or you are showing signs of or symptoms of anxiety or panic disorder, I would suggest आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप मेडिकल हेल्प लो, बिकॉज वो आपको इफेक्टिवली इन चीज़ों को कैसे डील करना वो बताएंगे. प्लस दे विल गिव यू मेडिसिन्स एंड दीज मेडिसिन्स रियली हेल्प यू टू काम यू डाउन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 2009 में. आई वॉज इंटर्निंग एंड मुझे अपने किसी एक रिलेटिव को विज़िट करना था इन द हॉस्पिटल. एंड मैं गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में गई. वहाँ पे वेटिंग एरिया में व्हेन आई वाज सिटिंग विद अदर पीपल, अदर पीपल हु वर वेटिंग फॉर देयर रिलेटिव्स. तो पेशेंट्स आ रहे थे, जा रहे थे. उसमें से एक बंदा था जो आई थिंक उसका रिसेंटली ब्रेन सर्जरी हुआ था उस टाइम पे. एंड उसको उसके हेड पे दे वर जस्ट टचिंग एंड दोस नर्सेस वर ऑब्जर्विंग कि क्या हुआ है. आई थिंक रूटीन चेकअप था. Relation कुछ नहीं था, but looking at that tensed scenario, I went into a panic mode. So I started shivering, I started sweating, I started having those breathing problem episodes. Immediately मुझे emergency room में लेके गए, where they administered an injection to me, and they gave me some medicines, they put me on nebulizer and all, and they waited for me to get back to normal. नॉर्मल होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू शुड सी सम न्यूरोसाइकेट्रिस्ट बिकॉज दिस इज़ अ न्यूरो प्रॉब्लम एंड वी डोंट नो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. तो आपको एक सिटी स्कैन और ईईजी कराना पड़ेगा अपने ब्रेन का. सिटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आया, बट मेरा ईईजी का जो ग्राफ था विच वॉज नॉट एट ऑल नॉर्मल. सो नॉर्मल ग्राफ जो ऐसी आती है ना, वो मेरी ऐसी से आई थी, लंबी लंबी. And the doctor himself was surprised कि यार इसके brain में there is something, the brain currents are very high, and you should consult, you should seek medical help at this time. Because my dad was posted in Calcutta at that time, so I happened to visit one of the neuropsychiatrists, and he told me that he was the first one to point it out that you have anxiety and panic disorder. And it was quite surprising. For him, it was not drama. It was not attention seeking. He was very clear. You have anxiety disorder and you need help. And I'll give you some medicines. I think when I started having those counseling sessions with him, he asked me about my ranks. He asked me about my college, how I was doing. And I told him I was doing pretty well academically. But कुछ तो भी था, मतलब it was a change of perspective. I was not happy. The things were not going right in life, or perhaps I was not able to comprehend the situation. So समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था. And he said, look, you have anxiety issues, okay? And your anxiety issues, I can give you medicines. But they will make you feel sleepy, so you can't take them while you are in college. या आप internship कर रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, तो आप नहीं ले सकते. तो आप एक SOS medicines रखो अपने पॉकेट में हमेशा. और आपको जब भी ऐसा कुछ हो तो आप वो मेडिसिन सिर्फ अपने टंग के नीचे रखो, and you'll be okay within some time. So I used to carry one strip of tablet in my pocket all the time. Funny thing was, not a lot of people knew about it. The reason I'm telling you this is, it was very difficult for me to talk about it, and it was very difficult for me to tell it to someone without having the fear of being judged, or having the fear of being not being acceptable to
other people, my friends, my peer group, my colleagues. So मैं मेरे एक या दो दोस्तों को ये चीज़ें बताया था मैंने कि आई हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड चीज़ें सही नहीं हैं एंड ये कभी भी होता है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आता है. आई फेंट, आई हैव मूड स्विंग्स, आई फील सैड, ऑल ऑफ अ सडन मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ व्हेन आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, व्हेन आई फील लाइक सिटिंग इन वन रूम एंड क्लोजिंग एवरीथिंग. आई डोंट इवन वांट कि उस रूम में थोड़ी सी भी लाइट हो. एंड ऑल ऑफ दिस वॉज वेरी न्यू. सो जो मेरे आसपास के लोग थे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये इसलिए करे क्योंकि इससे ड्रामा पसंद है, अटेंशन पसंद है एंड लोग आपको अटेंशन देंगे. सो दिस वॉज, दे फेल दैट दिस वॉज माई वे ऑफ गेटिंग फेमस. माई क्वेश्चन इज, हु वॉन्ट्स टू बी फेमस लाइक दिस? आर यू सीरियस? आई मीन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि हमारे आसपास जब ये ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट होती है ना, तो हम इतना उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, उसको जज करते हैं कि सामने वाला या तो ड्रामा कर रहा है या अटेंशन सीख कर रहा है. वो सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता है, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता इस बारे में. मुझे पता है बिकॉज आई हैव लिटरली सीन पीपल डूइंग दैट टू मी. ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जिसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो उसको सुसाइडल थॉट्स भी आए. मेरे साथ हुआ है. आई नो इट्स अ मेडिकल कंडीशन एंड इट ऑलमोस्ट कॉस्टेड मी माई लाइफ एंड इट्स नॉट अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी. ओके, एंड सेइंग दैट, कोई भी नहीं चाहता कि उससे अटेंशन सुसाइड अटेम्प्ट करके मिले या डिप्रेस्ड होके मिले या एंग्जाइटी डिसऑर्डर by going through anxiety disorder उसे attention मिले. No one wants that. That's the wrong kind of attention and no one really likes it. I have 2 suggestions for you. First, stop taking advice from everybody. हर कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करता है. बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है, थप्पड़ 2 थप्पड़ लगाओ ठीक हो जाएगी, ठीक है बाहर चले जाओ, घूम के आ जाओ, शॉपिंग कर लो, ठीक हो जाओगे. पर ऐसा नहीं होता. दीज आर टेम्पररी रिलीफ. ओके, सो इफ़ आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, हो सकता है मैं शॉपिंग करके वो मोमेंट के लिए खुश हो जाऊँ, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप दैट कंडीशन. सो आई हैव टू विजिट अ क्वालिफाइड डॉक्टर. एंड देयर वुड बी पीपल हु वुड टेल यू मेरे फैमिली में डॉक्टर है, मेरे फैमिली में I know I myself a psychology student and all that shit, and they will try and justify that you are not going through this medical condition and it will be okay, you don't need to visit a doctor. That's all false. You need help, and help meaning qualified specialist, not just anybody. Okay, second suggestion is try and keep yourself engaged. Okay, I think the reason I started working for 16 hours a day or 17 hours a day was probably because I knew I wanted to be busy. I wanted to think less. I wanted to get tired and, just sleep. Just not think about anything. So I used to, even if I'm on a Sunday, if I'm sitting at my home and kuch nahi hai, तो I'll just keep studying. Okay, मैं जितने भी बुक्स हैं वो पढ़ूँगी, जितने भी अगर बुक्स नहीं पढ़ने तो नॉवेल्स, मतलब जो अगर मुझे नॉर्मल फिक्शन पढ़ना है मैं फिक्शन पढ़ूँगी, मुझे सीरीज़ देखना है मैं सीरीज़ देखूँगी, कुछ भी, बस बिज़ी रहो. क्योंकि जब तक आपका माइंड बिज़ी रहेगा ना, आप वो थॉट्स नहीं आएंगे आपके दिमाग में, और जब तक वो थॉट्स नहीं आएंगे तब तक वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा. ऑल्सो जब आप ऐसे सुसाइडल थॉट्स आए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू समवन अबाउट इट. एंड इट्स ओके, ठीक है यार, मतलब there are times when you don't want to continue and you want to give up on life. ऐसे थॉट्स आना गलत नहीं है. गलत तब होता है जब आप इसके बारे में बात नहीं करते हो. सो बात करो उसके बारे में. कोई तो होगा, फ्रेंड, फैमिली, जिससे आप बात कर सको. इन माई केस आई थिंक माई ब्रदर वॉज वन गो टू पर्सन दैट आई ऑलवेज went and talked to. I told him my problems in detail and he would patiently listen to me. So
ऐसा कोई जो आपको सुन सके. काउंसलिंग, इफ़ यू थिंक दैट आपके आसपास ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है या फैमिली में किसी से बात नहीं कर सकते, काउंसलिंग जाओ. एंड दीज काउंसलिंग्स आर ऑल इट्स द डिटेल्स आर ऑलवेज केप्ट सीक्रेट. सो ऐसा भी नहीं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी. परफेक्ट कोई नहीं होता, लाइफ भी नहीं होती. लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इम्परफेक्ट. चैलेंजेस होंगे, मेरी लाइफ में आज भी चैलेंजेस आते हैं. एंड there are times when I just don't want to do anything. I just want to go somewhere, be alone. But that's no reason to harm yourself. And बहुत ऐसी स्टोरीज मैं न्यूज़ में देखती हूँ, पढ़ती हूँ. एक बच्चे ने 15 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया. एंड पीपल start calling them cowards. I'm sorry if you don't know what they have gone through. I'm sorry that you bloody were not there when these people were going through that shit. If you don't know the details, please bloody don't call them cowards, because वो coward नहीं है. You bloody don't know what that person is going through and why that person has taken this step. It's not a failure on part of that individual. It's a failure on part of us as a society. That we made, we ensured that the person is not able to speak about his problem. We created so much of stigma and इसके आसपास इतना judgment लगा दिया है कि लोग डरते हैं बात करने से यार. आई थिंक एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये, while you're going through this, take it as a lesson. Don't take it as कि एक विक्टिम सिचुएशन मत बनाइए इसे कि मुझे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, मैं किससे जाके बात करूँ, मेरी लाइफ में कोई है नहीं. बिकॉज जब आप ये करते हो ना तो यू ओवरलुक ऑल दी सॉल्यूशंस दैट आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. रियलिटी ये है कि हर बंदा जो वहाँ आपके सामने है, ओके, दोज पीपल आर देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. 99% फील people feel they feel happy that, and they feel content, if I may say so, that at least satisfaction मिलती है उन लोगों को कि यार चलो इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, गुड. 1% जो लोग होते हैं ना जो आपको जेन्युइनली केयर करते हैं, वो 1% का होना बहुत इम्पोर्टेंट है. you don't need 10,000 people in your lives. जो ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, इंस्टा पे देखते हो, स्नैपचैट पे देखते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, आई लव यू, ओ माई बेबी, माई स्वीटू, ये सब कुछ नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ ऑन देयर ओन एंड देयर इज़ ओनली 1% पीपल, योर फैमिली, योर लव्ड वंस, हु वुड बी देयर. और शायद कुछ ऐसे दोस्त जो एक्चुअली जेन्युइनली केयर करते हैं. I can literally, I think 2 or 3 friends that I have that I know that I can reach out to if I am going through some problem. वो जानना और मतलब to know that and to be sure of those people is what is important. Declutter your life. And हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि we want life to be in a certain way. क्या मेरी लाइफ में ये ऐसी ही होनी चाहिए. जब वो उस पर्टिकुलर वे में नहीं होता ना, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं. एंड दैट इज़ व्हेन वी गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना दैट लाइफ में हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी. देयर विल बी डेज व्हेन इट विल बी द बेस्ट ऑफ योर डे. देयर विल बी डेज व्हेन यू विल रॉयली मेस अप. पर दोनों दिन जियो यार, क्या फ़र्क पड़ता है. एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन्स हैं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. बट गिविंग अप इज़ नॉट द सोल्यूशन. सेइंग दैट, I still want to continue doing more sessions on depression, anxiety, suicidal thoughts, all these issues. And if anyone is out there and if you feel that you want to talk to someone,
and you want to reach out to someone and you want someone to listen to you or your story, you can reach out to me. And I promise I will not judge you. I will listen to your story because I know what it feels like when no one is there for you. When you're, people around you judge you for things which are not there in your control. And it's okay. So saying that, आप अगर चाहो तो मुझे मैसेज करो, DM करो, and I promise आपकी identity and everything will be safe with me. And yeah, that's it. I hope all these sessions are, helping people to become more aware and we can be more empathetic. So thank you so much. Namaste. And thanks for showing your support and kindness. Thank you.